ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر صورت اس فیصلے کی دفاع ہو اور اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن ہو. 4 ججز کو ایڈہاک ایک ساتھ لانا، وہ بھی چھٹیوں میں لے کے آنا، وہ بھی اس وقت پہ جب چیف جسٹس کے ریٹائر ہونے میں آلموسٹ 1 مہینہ ہے. چھٹیاں شروع ہو گئی، سپٹمبر 15 تک چھٹیاں ہیں. 1 مہینے تک آپ نے ان 4 ججز کو لانا اور وہ بھی 3 سال کے لیے بدنیتی پر مبنی ہے. ہم نہیں سمجھتے اس سے قوم کی فلاح ہوگی، اس سے اور ہی بد اعتمادی بڑھے گی آزاد عدلیہ پہ. یہ ایڈہاکزم آزاد عدلیہ کے لیے موزر ہے. مہربانی کرے اس سے اجتناب کرے. آج ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا سینٹ شبلی فراز صاحب کی طرف سے اور آج ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی عمر ایوب صاحب کی طرف سے ہم سارے ریزرویشن انشاءاللہ تعالی لکھ کر سپریم جوڈیشل کونسل میں ہم بھیج رہے ہیں کہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے اقدامات سے آپ گریز کریں. ججز اس انیشل ابتدا سے ان کو متنازعہ برائے مہربانی نہ بنائے. یہ وقت ایسے ڈیسیجن لینے کا نہیں ہے، یہ وقت ہے سپریم کورٹ کے ایک اہم فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کا. اس کے ساتھ ہی ہم نے فیصلہ کیا ہے اور ہم شکریہ ادا کرتے سارے وکلاء تنظیموں کے، وکیلوں کے، ان پولیٹیکل پارٹی نے کہ جنہوں نے ایڈہاکزم کے خلاف آواز اٹھائی اور جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف پہ بین لگانے کے خلاف بھی آواز اٹھائی ہے. پاکستان تحریک انصاف 70% پاکستانیوں کی ترجمان جماعت ہے. اس پہ کوئی بھی پابندی حکومت کے ختم ہونے کی طرف کاؤنٹ ڈاؤن ہوگا. انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف ایک محب وطن پارٹی تھی، ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ رہے گی. اس کے ساتھ آج ہم الیکشن کمیشن کو اپنی کنفرمیشن پارٹی کی طرف سے واپس دے رہے ہیں. جس طرح سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے 37 MNA نے اپنے ایفیڈیوٹس فائل کیے ہیں، اس کی کنفرمیشن ہم بھیج رہے ہیں. باقی ہمارے 3 MNA صاحبان ہیں، وہ دبئی میں تھے اور عمرہ پہ ہیں، ان کے ایفیڈیوٹ آج مل جائے گی انشاءاللہ، وہ بھی کل سبمٹ ہو جائے گی اور ان کا بھی ہم کنفرمیشن بھیجیں گے. ہم الیکشن کمیشن سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ آخری وقت ہے، یہ آخری وقت ہے. سپریم کورٹ نے بولا ہے یہ عوام کی آواز ہے، آپ نے فوراً ہمارا نوٹیفیکیشن ایشو کرنا ہے جس طرح سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کیا ہے. سپریم کورٹ نے یہ بھی آرڈر کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کمپلائنس رپورٹ فوراً سپریم کورٹ میں فائل کرے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ کمپلائنس رپورٹ بھی جلد فائل ہوگی. شبلی صاحب یہاں پہ صرف ایک پوائنٹ ضروری، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ سرینا صاحبہ نے آرٹیکلز لکھے، بیانات دیے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اور انہوں نے مائنڈ دیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب. میں پھر ریٹریٹ کرتا ہوں ان کو PTI کا کوئی کیس نہیں سننا چاہیے. اور آخری ڈیمانڈ میری طرف سے، پھر شبلی فراز صاحب بات کریں گے، چیف الیکشن کمشنر اپنا سلطان اکرم راجہ اور اس کے چاروں کمشنر سکندر سلطان راجہ اور اس کے تمام کمشنرز فیل فور ریزائن کریں ورنہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکثر باتیں میرے ساتھیوں نے کر لی ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے 2 سال سے جس طرح کہ یہ سسٹم بے نقاب ہوا ہے، جس طرح سے پاکستان کے عوام کو یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کی جو قسمت ہے وہ کس طرح سے اس کو مینیج کیا جاتا ہے. جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے ریزرو سیٹس کے بارے میں، تو یہ جو حکمران ٹولہ ہے یہ تلملا اٹھا ہے، یہ بوکھلا گیا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں جس سے کہ اس پورا جو کہ ایک عوام کی جو ایک رائے تھی، عوام کا جو ایک مینڈیٹ تھا، وہ واپس عوام کے نمائندوں کی طرف جا رہا ہے. جس طرح سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پارٹی کو بین کرو، یہ ایک انتہائی بھونڈا قدم ہے جو کہ حکمران ٹولہ یہ سمجھتا ہے کہ بوکھلاہٹ میں وہ جو ان کی آپشنز ختم ہو گئی ہیں، ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہی. جس طریقے سے آئین اور قانون کو جوتے کی نوک پہ رکھا جا رہا ہے، جس طرح سے آئین شکنی ہو رہی ہے، جس طرح سے کہ ادارہ جاتی پستگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اس سے یہ ملک آگے نہیں جا سکتا.
ये सिर्फ नीचे ही जा सकता है। अगर आप देखें, कल जो एक रिपोर्ट शाया हुई है, फिच रिपोर्ट, जिसमें कहा गया कि ये हुकूमत 18 महीनों की मेहमान है और उसके बाद टेक्नोक्रेटिक सेटअप आएगा। देखिए, हम इस मुल्क के साथ मजीद खिलवाड़ करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये मुल्क किसी एक तबके का नहीं है और अवाम इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ टैक्स दें, वो अपने पेट काट कर और बिजलियों के बिल अदा करे, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे, वो अस्पताल भेजे। ये सारी फैसिलिटीज, ये सारी मराहत जो थी, जो कि एक मिडिल क्लास या गरीब तबका अफोर्ड कर सकता था, अब वो भी उनसे छीन लिया गया है और अभी खराबी मजीद आगे आने वाले महीनों में होगी। बिजली महंगी होगी है, जिसमें चाहे बिजली हो, बाकी अशिया, इन्फ्लेशन हो, पेट्रोल, सब कुछ ये नामुमकिन बना रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के जीने को। और मेरी रिक्वेस्ट होगी, जो भी सहाफत से मुंसलिक है वो इन चीजों को देखे। ये आने जाने वक्त है, इसमें सिर्फ सेठों की बात न सुने, अवाम की नुमाइंदगी करें, अवाम के मसाइल को आगे करें, उजागर करें। माजरत, इसलिए ये चाहिए कि जो इस वक्त हो रहा है, हम उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़ी होगी। हमारे लोग मुख्तलिफ चीज़ें देख चुके हैं, वो चीज़ें जो कि इस मुल्क में कभी नहीं देखी थी। हमने अपने मैंडेट का जो हाल हुआ उसको देखा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक फरीक बन गया है, और मैं तायद करता हूं अपने सेक्रेटरी जनरल साहब की और चेयरमैन साहब की कि उसको अपने चारों मेंबरान के साथ इस्तीफा देना चाहिए, बिकॉज वो साबित हो गया है कि वो पार्टी है, वो एक न्यूट्रल नहीं है। इसलिए अगर हमने इस मुल्क को एक महजब उसमें लाना है, महजब से भी एक दर्जा कम, तो आपको आईन की और कानून की हुक्मरानी माननी पड़ेगी। उसके बगैर कोई चारा नहीं है, उसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। और ये जो हुक्मरान टोला जो इस वक्त सहूलतकार बने हुए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इवन पीपल्स पार्टी, जब बैन लगा था जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1974 में लगाया था नेशनल अवामी पार्टी पे, आज उनके पास एक मौका है या था कि अपनी उस गलती को वो दुरुस्त करते। और ये जो बात की है वो उस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को, जिसके के वो ये बात करने में उनकी मुखालिफत करे और क्लियरली अपना स्टैंड ले, बीच बीच में न खेले। इसलिए जो हमारे MNAs को किडनैप किया जा रहा है, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और आखिर में जो खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ जो एक मनगढ़ंत सियासी झूठे मुकदमे बनाए गए हैं, जिस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है, वो पूरी पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा लीडर हैं। उनके साथ ये रवैया, इस मुल्क के अवाम के साथ ये रवैया है। और पाकिस्तान के अवाम अब जाग चुके हैं और उन्होंने सब कुछ देख लिया है। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि अभी भी होश की नाखुन लें, आइन पे और कानून की अमलदारी पे काम करें। इसके सिवा कोई चारा नहीं है, वरना केओस है, एनार्की है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। ये अब एक सेकंड, ये सरताज गुल बात करेंगे। सिर्फ एक सेकंड। बहुत गर्मी में दोबारा से मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ। जी एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप दोबारा से धूप और गर्मी में हमारे लिए खड़े और हमारी बात को आप पहुंचा रहे हैं। मेरी सिर्फ आपसे दो बात है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अलामा नासिर साहब भी आपसे बात करें, साहबजादा साहब भी आपसे बात करें। PTI को बैन करना दीवाने का ख्वाब है। दीवाने सिर्फ सड़कों में गलियों में नाचते फिर सकते हैं, पर प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकते हैं। अजादार 9 मुहर्रम को और 10 मुहर्रम को अजादारों को पंजाब हुकूमत फैसिलिटेट करने के बजाय हमारे पंजाब के तमाम MNAs PS के घरों के ऊपर धावा तमाम नफरे के साथ बोला गया था। लिहाजा
ये जो सिलसिला अगर बंद आपने ना करा तो मैं आपको बता रही हूँ कि मुल्क में वाकई अनारकी है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की एक आवाज है, पीटीआई थी, पीटीआई है, पीटीआई रहेगी। इमरान खान था, इमरान खान है और इमरान खान इंशाल्लाह रहेगा। बेहतर ये कि आप हमसे जंग करने के बजाय आप इमरान खान से माफी मांग ले, इंशाल्लाह आफाका होगा। स्पीकर असद कैसर साहब अलायंस के बारे में, उसके बारे में जरूरी आपसे बात। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, मैं मुख्तसर बात करूँगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि देखें, जिस तरह इस मुल्क को चलाया जा रहा और मुल्क में जो इन्होंने अनारकी फैलाई हुई है और ये जिस तरह बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मुल्क को आइन जो है ना सरजमीन बे आइन बना दिया है और कोई ये नहीं महसूस करता कि इस मुल्क में कोई कानून या आइन है। ये जो कर रहे हैं ये बंदूक के तौर पर कर रहे हैं, ये बदमाशी के तौर पर कर रहे हैं, इसके पास कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। हम सिर्फ कानूनी जवाज़ को सामने रखते हुए कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजिमी है तो फिर जंग ही सही। मैं इनको कहता हूँ कि अगर तुम्हारी ख्वाहिश है कि जंग करना है, यकीन जानो हम तुमसे 2 कदम आगे होंगे। जंग के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मुल्क में अनारकी ना फैले। अभी इनको बताया होगा कि हम इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में मोबिलाइजेशन शुरू कर रहे हैं। अलायंस के हवाले से हमारी जो है ना 1-2 दिन में आपको इंशाअल्लाह बड़ी खबरें मिलेंगी। GDA से भी राबिता है, जमात उलमा इस्लाम से भी राबिता है और दीगर पॉलिटिकल पार्टी से राबिता है। इस जुलाई में हम इस अलायंस को बड़ा करेंगे और हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि इस मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलाओ। मैं तो समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ भागने वाला है। उसने जो है ना अपने लिए एक ऐसा तरीका बनाया कि वो समझते हैं कि कोई तरीका मुझे जो है ना राय फरार मिले। राय फरार तब मिलेगा जब आप पब्लिक में आओ, ऐलान करो, माफी मांगो और कहो कि ये जाली मैंडेट है मेरे पास, असली मैंडेट तहरीक इंसाफ के पास है, इमरान खान के पास है, तो आपकी कुछ न कुछ सियासत बच जाएगी। हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं, इन्होंने जो बिजली के हाल किए, जो बिजली के बिल लोगों के पास जाएंगे ना, ये आम गरीब आदमी की बस की बात नहीं है कि वो बिजली के बिल अदा कर सकेंगे। जितने इन्होंने टैक्स लगाए हैं, ये टैक्स किसी की बस की बात नहीं है कि ये टैक्स जो है ना ये पे कर सकेंगे।